Hi, good evening. So this is our first lecture of paper 2. In this video, we will talk about the famous and common names. All right. So this lecture is all about the famous names generally asked by UPSC. So there is no dedicated question per se where they asked about the famous name. Okay. But these names are usually appear in the within the question. For example, this year 2022, it asks ki you have to prepare coumarin. You have to prepare coumarin from phenol. If you don't know the structure of coumarin, you can't solve that question. Okay. Hence, this topic becomes very important. Similarly, in 2018 or 19, a question is asked, what is the product? What is the product after Hoffman exhaustive methylation? After Hoffman exhaustive methylation of piperidine. Okay, piperidine. If you don't know what is piperidine, what is the structure of piperidine, you can't solve that particular question. And this question have a weightage of 15 marks. This question also have a weightage of 15 marks. So the first thing first, with this lecture and this video is why this is important. Since questions have been asked, so it have a utility of around 20 to 30 marks in each year. Why? Because these names can be asked within the question, okay? And the second perspective of why we are studying it. Suppose if you are writing a reaction ki A से B बना and B से C बना, okay? And you are writing a mechanism also. But if you know the common name which I have compiled here, you can label that product, okay? Suppose this is piperidine, okay? And this is C is a pyridine. If you label these compounds with the common names or the IPSC names, then that particular answer becomes more rewarding from the examiner point of view. So it means these famous names can directly be used while attempting a question, and these can also used as a value addition tool in the form of labeling कंपाउंड्स तो कंपाउंड्स हम बना रहे हैं रिएक्शंस में उनकी लेबलिंग हम कर सकते हैं ऑल राइट सो दिस इज द प्रीटेक्स्ट ऑफ द दिस इज द background why we are studying this particular topic. Even before starting GOC, this becomes very all the more important. So let's start. इसमें करना क्या है? Since this is my first lecture, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि what will be the design of the lecture. Okay, so I will teach you the theory. I will go through all the common names. Then I will give you certain exercises within the lecture, okay, which will act as homework. And if you have certain doubts, you can ask me the next day in the doubt session. All right, चलो let's start. तो first molecule क्या है? Picric acid. Okay, so picric acid is a phenol which is substituted at ortho, para, and ortho position by nitro group. So this is the picric acid. And what is important? We know that acid is generally associated with C double OH group, but this molecule does not have the C double OH group. But even though it is termed as acid, why? Because the K value is so much high. All right. So let's move to other compound, famous compound. So this is as in 2019, then 2022 also. So these becomes very important. Now, squaric acid. Why the name is squaric acid? Since the given compound is in form of a square. All right. That's why the name is squaric acid. So what is the very important features of this squaric acid? First thing is it is a
dibasic acid. Dibasic acids are those acids which can release two proton. All right. Then the conjugate dianion, जो इसका conjugate base है, the conjugate base which is a dianion, which is a dianion. Why dianion? Because it produces 2H plus. So this dianion is a aromatic is aromatic in nature. Aromatic means it is cyclic, it is planar. Planar means all the atoms are sp2. Then it is completely conjugated, and it have 2 pi electrons. 2 pi electrons means 4n plus 2 pi electron system where n is equal to 0. All right. So these are the four features of aromaticity. So this squaric acid जब भी आएगा, you can use all these common the basic properties of this to enrich your answer. All right. So this is the exercise. अब आपको क्या करना है, आपको जेरी मार्च की पीडीएफ होगी तो उसमें सर्च कर लेना कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है। तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी क्यूरियस, हु वांट टू सेल्फ लर्न आल्सो, तो दे कैन डू दिस एक्सरसाइज। आप जब कैप्टोडेटिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको स्क्वायरिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल दिख जाएंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू अदर। अब इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे कोई भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेंजोइक एसिड पे थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें करने हैं। तो अब देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है। बेंजोइक एसिड इज दिस वन। ऑल राइट, एंड बेंजल्डिहाइड इज लाइक दिस टाइप। if we oxidize benzaldehyde, we get benzoic acid. अब अगर मैं एक बार आर्थो पोजीशन पे मैं CWS लगा सकता हूं। जस्ट अ मिनट। या एक बार मैं पैरा पे लगा सकता हूं, या एक बार मैं इस वाले आर्थो पे लगा सकता हूं। तो अलग अलग, सॉरी ऑर्थो पे नहीं, यहाँ पे मेटा पे लगा सकता हूँ। तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। चलो उसी तरह ये जो हमारा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड, इसके आर्थो पे मैं लगाऊंगा तो क्या मिलेगा। अगर मैं इसके आर्थो पे CHO लगा दूं, इसके आर्थो पे मैं क्या लगा दूं, CHO, तो मैं इसको बोलूंगा थैलल्डिहाइड। थैलल्डिहाइड। अगर मैं इसके आर्थो पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो इट बिकम्स थैलिक एसिड। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो थैलल्डिहाइड है, अगर इसका मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। ऑल राइट, चलो तो थैलिक एसिड हमें दिख गया। ठीक, अगर मैं मेटा पे लगा दूं, अगर इस पोजीशन पे CWS लगा दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आइसोप्थैलिक एसिड। अगर मैं इसके पैरा पे लगा दूं, इसके मैं पैरा पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, टेरिप्थैलिक एसिड। थैलल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसी थैलिक एसिड को हीट कर दूंगा तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। हीट करोगे तो वेपराइज हो जाएगा वाटर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। ऑलराइट, अब देखो मैं कोरिलेट करते हुए चल रहा हूँ रिएक्शंस के साथ, तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। तो आप कैसे पाओगे थैलिक एनहाइड्राइड, थैलल आपने बेंजल डिहाइड से बेंजोइक एसिड पाया, थैलल्डिहाइड से आप थैलिक एसिड पाया, थैलिक एसिड को आपने हीट कर दिया तो थैलिक एनहाइड्राइड पा गए। अब देखिए इसी थैलिक एसिड को आपने हीट तो किया लेकिन अमोनिया के प्रेजेंस में किया, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे NH ग्रुप आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, थैलामाइड। ठीक है, तो ये सारे कॉमन नेम्स हमारे क्लियर हो गए, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलामाइड, टेरिप्थैलिक एसिड, आइसोप्थैलिक, थैलल्डिहाइड।
ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब देखो एंथ्रेनोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। या तो पेरिसाइक्लिक में पूछ लेता है, ठीक है, या तो फिर डायज़ोटाइजेशन वाले रिएक्शन में पूछ लेता है, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। चलो, तो अब हम बात करते हैं एंथ्रेनोलिक एसिड होता क्या है। तो ये जो हमने बेंजोइक एसिड लिया था, इसके आर्थो पोजीशन पे मैं क्या लगा दूं, अमीनो ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं, अमीनो ग्रुप लगा दूं। तो ये क्या हो जाएगा, एंथ्रेनोलिक एसिड। अब कुछ नए मॉलिक्यूल्स में बताता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसके आर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दूं, तो मैं इसको बोलूंगा आर्थोटॉल्विक एसिड। क्या बोलूंगा, आर्थोटॉल्विक एसिड। अगर मैं इसके मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा सॉरी मेटा टॉल्विक एसिड। अगर मैं इसके पैरा पोजीशन पे लगा दे रहा हूं मिथाइल, ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा टॉल्विक एसिड। तो इस तरह से कम 8-9 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी बताते चल रहा हूँ। थैलिक एसिड, जब भी आप पॉलीमर पढ़ोगे तो वहां पे ग्लिप्टल एक पॉलीमर आएगा। क्या आएगा, ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल पॉलीमर बनाने में थैलिक एसिड क्या होता है, एज ए मोनोमर यूज होता है। ऑल राइट, फिर एक और पॉलीमर हमें पढ़ना है, डैक्रोन। क्या पढ़ना है, डैक्रोन। डैक्रोन की प्रिपरेशन में टेरिप्थैलिक एसिड बिकम्स अ मोनोमर। If you don't know the common names of terephthalic acid, how can you make the monomer? Because UPSC generally asks what is the monomer of this polymer, ठीक है, write the structure and write the reactions also. So if you don't know, even if you know the structure, if you write terephthalic acid, if you write phthalic acid, then it becomes a value addition tool for all of you. All right, चलो आगे मूव करते हैं। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये मैंने अभी करा भी दिया है कि बेंजीन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो ये आपका एक होमवर्क है, ये आप करना। जो आपको डाउट होगा यू कैन आस्क टुमारो, ठीक है, क्लियर। तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको करने हैं। अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये हम आगे जब जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तभी करेंगे। लेकिन मैंने ये एप्लीकेशन इसलिए दिखाया है कि इफ इस तरह का क्वेश्चन अगर है, तो अगर आपने थैलिक एनहाइड्राइड लिख दिया, अगर आपने थैलिक एसिड लिख दिया, अगर आपने थैलामाइड थैलामाइड लिख दिया, बेंजीन लिख दिया, बेंजोइक एसिड लिख दिया, तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये अगला मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मैंने एक ग्रुप मान लिया है एक्स, ठीक, ये हो गया एक्स। अब ये एक दूसरा ग्रुप है वाई, एक दूसरा ग्रुप है वाई। तो वाई क्या है, एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे मुझे लगाना है। बात समझ में आ गई सबको, एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। तो अगर एक्स की वैल्यू COOH है और वाई की वैल्यू H है, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। CHO है और H है, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है, CN है, CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप, तो उस कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। और COOH है, COOH है आर्थो पे, तो क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड। COOH है, COOH है, लेकिन अब की बार मेटा पे है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथैलिक एसिड। और अगर COOH है और पैरा पे COOH आ गया, तो इसको बोलेंगे टेरिप्थैलिक एसिड। तो इसको, इसके लिए निमोनिक एक हम बना सकते हैं, PIT, पिट, ठीक है। आगे चले, COOH है और आर्थो पोजीशन पे NH2 आ गया, तो क्या बन जाएगा, एंथ्रेनोलिक एसिड। अगर X की वैल्यू मिथाइल है और Y की वैल्यू H है, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉल्विन। अगर एक क्या है, X की वैल्यू CH3 है, X की वैल्यू क्या है, CH3 है, और Y की वैल्यू CH3 है, एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, तो नाम क्या हो जाएगा, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। इफ मिथाइल हमने ले लिया और OH ले लिया, एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे, तो उसका नाम हो जाएगा क्रिसॉल। क्या हो जाएगा, क्रिसॉल। ऑल राइट, एक यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ, COOH हो गया, इसके साथ में क्या हो गया, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक बार आर्थो, एक बार मेटा और एक बार पैरा, टॉल्विक एसिड। क्या हो जाएगा, टॉल्विक एसिड। तो कॉमन नेम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अगर मिथाइल के साथ OH है, COOH के साथ अगर OH है,
सॉरी, मिथाइल के साथ OH है तो क्रिसॉल कहलाता है, ठीक है। और COOH के साथ मिथाइल है तो टॉल्विक एसिड कहलाता है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब एक और मैं नाम बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। COOH आपने कर दिया और उसके साथ आपने OH लगा दिया, किस पोजीशन पे? आर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। तो जब आप रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है। या जब एस्पिरिन की सिंथेसिस हम करते हैं, देन आल्सो सैलिसिलिक एसिड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इट कैन, दिस नेम कैन बी यूज्ड एज वैल्यू एडिशन टूल व्हाइल राइटिंग रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलेल्डिहाइड, थैलेमाइड। ठीक है। थैलेमाइड के लिए एक नेम रिएक्शन भी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जो कि हिडन सिलेबस है। हिडन सिलेबस मींस इट इज आस्क्ड बाय यूपीएससी बट नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ये आपका एक, मैंने कॉमन नेम वाला कर दिया है, ये आपका एक होमवर्क हो गया। अब आप इसको देखना कि कैसे इसको वैल्यू एडिशन की टूल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे तो भी हम ये सारी चीजें, आपको जो भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में इसको पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहले आप सेल्फ असेसमेंट करो कि क्या आपका प्रेजेंट नॉलेज है अभी। जस्ट ए मिनट। ये सारे होमवर्क है, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज में दे रहा हूँ ये सारे आपको करने हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। सॉरी। अब देखो, अब ये दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। पहला एक क्या है? मैलिक एसिड। अब कैसे इसको याद करना है, तो देखो मैं इसको रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। अब आपके पास क्या है? आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया? इथाइलिन। आपने दो H इसमें से माइनस कर दिया, दोनों में से एक बार, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। तो इसके पास क्या हो गई? CH डबल बॉन्ड CH। और एक वैकेंसी यहाँ पे क्या हो गई? खाली हो गई। यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ खाली हो गई कि यहाँ दोनों H क्या है? एक साइड है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से सिस हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक H इधर रह जाए, एक इधर हो जाए, एक वैकेंसी इधर बन जाए, एक वैकेंसी इधर बन जाए, तो ये क्या हो गया? ट्रांस टाइप का। ऑल राइट, चलो। तो अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे COOH लगा दिया, सॉरी, तो इसको मैं बोलूंगा मैलेइक एसिड। क्या बोलूंगा? मैलेइक एसिड। इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्यूमैरिक एसिड। क्या बोलूंगा? फ्यूमैरिक एसिड। ये आपको याद करना है, ठीक। अब देखो, इसी मैलिक एसिड को, ये क्या है? दोनों एक ही साथ, एक साइड ही है। तो अगर मैं हीट कर दूं मैलिक एसिड को, अगर मैं हीट कर दूं तो वाटर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C, H, H, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मैलेइक एनहाइड्राइड। अब यूपीएससी ने मैलेइक एनहाइड्राइड एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स पूछा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि मैलाइक एनहाइड्राइड व्हेन रिएक्ट्स विद 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैलेइक एनहाइड्राइड अगर आपको पता ही नहीं है, इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ मैलेइक एनहाइड्राइड, हाउ कैन यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो आप 10 मार्क्स लूज कर जाओगे। तो 10 मार्क्स का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। 2021 में भी पूछा हुआ है। दूसरा, एक ये होमवर्क आपके लिए है। दिस इज द होमवर्क। विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक? ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आपको जो डाउट होगा आप डाउट में पूछिएगा। फ्यूमेरिक एसिड ज्यादा है या मैलेइक एसिड है? प्लस रीजन बताइए। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन रीजन, रीजन बताना है आपको। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं प्रोटॉन स्पंज किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन स्पंज इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली, इसको याद कैसे करोगे। अब देखो, पहले आप नेप्थलीन बना लो। क्या बना लो, पहले बेंजीन बना लिया, बेंजीन के बगल में एक और बेंजीन बना लिया। ऑलराइट। अब इसके इसको रिंग ए बोल दिया, इसको रिंग बी बोल दिया। तो रिंग ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है, आर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। क्या लगा दिया, एन। अब इस एन पे क्या लगा दिया हमने, दो मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है। ठीक, इस तरह से। ठीक, इसको प्रोटॉन स्पंज बोलते हैं। जब मैं बेसिसिटी पढ़ाऊंगा तो आपको ये मॉलिक्यूल के बारे में समझाऊंगा अच्छे से। अभी मैं ये सब नहीं समझा रहा हूँ कि एसआईआर इफेक्ट क्या है, कैसे बेसिसिटी बढ़ती है, तो ये सब चीजें आपको बेसिसिटी के टॉपिक में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप समझो कि इस प्रोटॉन स्पंज नाम से भी डायरेक्टली इस ये क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है कि what are proton sponges and what is the reason for enhanced basicity in such molecule. All right, so this becomes very important. अब चलो, अब हमने ले लिया फेनॉल का मॉलिक्यूल। क्या ले लिया, ये हमारा हो गया फेनॉल। ठीक, इस फेनॉल को मैंने क्या किया, एक बार आर्थो पोजीशन, एक बार मेटा पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, ओएच ग्रुप ही लगा दिया। यहाँ पे आर्थो पे, यहाँ पे मेटा पे और यहाँ पे पैरा पे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कारे क्यों। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम, हिंदी बेल्ट के जो भी बच्चे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कारे क्यों या केयर क्यों। केयर क्यों, ये निमोनिक आपको याद करना है। ठीक है, तो कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे तो मैंने पहला केस ले लिया, ये क्या हो गया, केस 1 हो गया कि जो यहाँ पे मैं ग्रुप्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे जी ग्रुप जो लग रहा है, अगर जी की वैल्यू ओ एच है तब क्या बनेगा, कार्य क्यों। लेकिन अगर केस 2 मैंने बना दिया, केस 2 मैंने बना दिया कि जी की वैल्यू क्या हो जाए, मिथाइल हो जाए, तो क्या बन जाएगा, आर्थोक्रिसॉल। क्या बन जाएगा, आर्थोक्रिसॉल। फिर क्या बन जाएगा, मेटा क्रिसॉल। फिर क्या बन जाएगा, पैरा क्रिसॉल। ठीक, अब केस 3 मैं ले लेता हूँ, केस 3 ले लेता हूँ। अगर मैं आर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया सी डबल ओ एच ग्रुप, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ऑल राइट, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिनाइल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ फेमस मॉलिक्यूल्स देखते हैं। ये मैंने मान लिया कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, फिनाइल रिंग पे एक जी ग्रुप लगा है। ये जी ग्रुप की वैल्यू क्या हो सकती है, जी ग्रुप की वैल्यू हो सकती है सी एन ग्रुप या सी एच ओ ग्रुप या सी डबल ओ एच, या तो ओ एच, ओ एम ई, ओ ई टी। ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये क्या हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, या तो मिथाइल। तो सी एन अगर है, अगर सी एन है तो क्या हो जाएगा, सी एन है तो बेंजो नाइट्राइड, सी एच ओ है तो बेंजल डिहाइड, सी डबल ओ एच है तो बेंजोइक एसिड, ओ एच है तो फेनॉल, ओ एम ई है देन इट विल बी नोन एज एनिसोल। If OET is there, ethoxy group is there, then phenitone. If CH double bond CH2 is there, then styrene. ठीक है, if C triple bond CH is there, then phenyl acetylene. If CH3 is there, then it is toluene. All right, so these are the famous common names. Now ये देखो, ये मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। कैटिचॉल डिस्कस्ड है, ऑर्थोजाइलिन डिस्कस्ड है, थैलिक एसिड डिस्कस्ड है, थैलेल्डिहाइड डिस्कस्ड है, ठीक है। रिसोर्सिनॉल भी पूछा हुआ है, आइसोपथैलिन भी है, मेटाजाइलिन, क्विनॉल, टेरिप्थैलिन, है ना, पैराजाइलिन। ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नाउ यू विल बी एबल टू लर्न। अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप क्या करो, एक तरफ से सारे मॉलिक्यूल्स एक रफ कॉपी पे लिख लो, या रफ कॉपी या फेयर कॉपी पे। फिर उन उसकी 5 कॉपी बना लो, मतलब 5 डिफरेंट कॉपी। और अपने आप को डेली सुबह उठ के 1 वीक या 10 डेज तक पुश करो कि फिल इन द ब्लैंक्स बना लो। कि जैसे मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने इस तरह से बना लिया, एक एक मैंने खुद से एक सीट बना दी। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक सीट बना दूंगा, अभी थोड़ा टाइम की दिक्कत चल रही है। ये ओ एच है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दो कि यहाँ पे क्या होगा। फिर आपने इस तरह से जितने मैंने मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं, आप इस तरह से बना लो, ठीक है। अब उसकी एक बार पीडीएफ कॉपी बना लो,
उसकी 5-10 कॉपी करा के रख लो, और थ्रू आउट ईयर जब भी आपको टाइम मिले आप सारे मॉलिक्यूल्स लो और उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दो कि यहाँ पे हाँ ये फिनॉल है, फिर ये आर्थोक्रिशॉल है। ऑलराइट, समझ में आया? ये आपको एक्सरसाइज खुद से करना है क्योंकि ये मेमोराइज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं बस यही हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे मेमोराइज करेंगे। फॉर दैट आई एम गिविंग यू सर्टेन रिएक्शंस, सर्टेन रिलेटेड फैक्ट्स, सो दैट इट कैन बी एज्ड इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑलराइट, तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से खुद के लिए बनाना है। ठीक, जब आप और मेच्योर होंगे, जब आप और पढ़ाई करेंगे, तो आपको इस तरह के रोड मैप प्रॉब्लम्स में करवाऊंगा। ठीक है, तो कोई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिनॉल से कुमेरिन कैसे बनाओगे। अगली बार पूछ सकता है फिनॉल से सल्सल्डिहाइड कैसे बनाओगे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, फिनॉल से एस्पिरिन कैसे बनाओगे, फिनॉल से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बनाओगे, फिनॉल से सलॉल कैसे बनाओगे। ऑलराइट, तो ये चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बट दीज आर द एडवांस टॉपिक्स। मैं ये क्वेश्चन, ये मैंने एक्सरसाइज क्यों ली है, क्योंकि ये बताने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दीज टॉपिक्स हैव हाई रेलेवेंस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। if you get a roadmap problem, then you can use, if you know the product, then you can use the common names as value addition tool. If you don't know, अगर सल्सल्डिहाइड दे दिया तो आप कैसे करोगे कि सल्सल्डिहाइड क्या होता है। ठीक है, if salol is mentioned, you if you don't know what is salol, then you can't write, you can't attempt that particular question, and such question have a very high weightage, 20 marks, and if you lose 20 marks, then it will be a huge blow for your selection. All right, चलो। अब आते हैं इथीन के डेरिवेटिव पे। मैंने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक ग्रुप मैंने ले लिया यहाँ पे G। G की वैल्यू क्या हो सकती है, क्लोरीन। अगर क्लोरीन Cl हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो उसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। अगर CN है तो एक्रिलोनाइट्राइल। अगर COOH है तो एक्रोलेइक एसिड, एक्रोलेइक एसिड। इफ CHO इज देयर देन एक्रोलीन। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये क्या है, पॉलीमर है, इसका मोनोमर पूछ दे एग्जाम में, तो मोनोमर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। अगर पीवीसी एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। ऑलराइट, समझ में आया? अगर ब्यूना एन पे शॉर्ट नोट, ब्यूना एन क्या है, एक रबड़ है, पॉलीमर है, अगर इसका पूछ दे कि मोनोमर क्या होगा, तो वन ऑफ द मोनोमर इज एक्रिलोनाइट्राइल। ऑलराइट, सबको समझ में आया? तो इस तरह से एक्रोलीन क्या है, एक्रोलीन जो है ये एक तरह से डाइनोफाइल की तरह एक्ट करता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो पीएच, पीएच CH डबल बॉन्ड CH। अब मैंने क्या किया, ये जो इथाइलिन था उसमें से इस वाले कार्बन से एक एच हटा के वहां पे क्या कर दिया, पीएच ऐड कर दिया। ऑलराइट, तो पीएच ऐड कर दिया, तो अगर जी की वैल्यू एच है, अगर वो एच है तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, स्टायरीन। अगर जी की वैल्यू CHO है तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, सिनेमल्डिहाइड। इफ द वैल्यू ऑफ जी इज COOH, देन द मॉलिक्यूल हैव द कॉमन नेम ऑफ सिनेमिक एसिड। ये सारे मॉलिक्यूल जो है पर्किन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे यूज होगा। ऑलराइट, चलो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, -H किया और +PH किया। अब मैं ये कह सकता हूं कि फिर मैं एक -H करूं और प्लस मिथाइल कर दूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगा दूं CHO। तो जो हमारा एक्रोलीन है, मैंने क्या किया, एक्रोलीन में, एक्रोलीन तो इतना तो एक्रिलोन था। ठीक, मैंने बस ये चेंज कर दिया, H हटा के वहां पे क्या कर दिया, H हटा के लगा दिया मिथाइल। तो ये बहुत ही फेमस नेम है क्रोटोनल डिहाइड, दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर लेना कि क्रोटोनल क्रोटोनल डिहाइड वर्सेज एक्रोलीन, जो एक्रोलीन है इसमें क्या अंतर है। ठीक है, बहुत बेसिक अंतर है, एक मिथाइल का अंतर है केवल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्रिलो सॉरी क्रोटोनल डिहाइड एंड एक्रोलीन। ठीक, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखो CH3CHO अगर दे रहा है तो इसका नाम होता है, CH3CHO का नाम, जस्ट अ मिनट, CH3CHO का नाम है एस्टल डिहाइड। CH3CN का जो नाम है ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एसिटोनाइट्राइल। तो अब आप कंपेयर करो,
अब आप कंपेयर करो एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है वर्सेज एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है। तो यू विल गेट टू नो कि एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया CN। एसिटोनाइट्राइल क्या है CH3 और CN। ऑलराइट, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपने एक्रिलोनाइट्राइल इफ यू यू नो मिस्टेकिंगली एक्रिलोनाइट्राइल की जगह ये लिख देते हो देन योर होल क्वेश्चन 10 मार्क्स 20 यू विल लूज 10-20 मार्क्स। ऑलराइट, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ठीक, अब देखो, अगर जो मेरा ये क्या है स्टाइरिन है, स्टाइरिन क्या होता है PH CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने क्या किया एक H यहां से हटा दिया -H कर दिया, उसकी जगह एक ग्रुप लगा दिया +G कर दिया। अगर G की वैल्यू H है तो उसको बोलेंगे स्टाइरिन, G की वैल्यू PH है तो उसको बोलेंगे स्टिल्बिन। ठीक है, ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ट्रांस फॉर्म में भी करता है। अगर G की वैल्यू O है, G की वैल्यू O है, जस्ट अ मिनट, G की वैल्यू O है तो उसको बोलेंगे सिनेमल डिहाइड। ठीक है, CHO है, देखो यहाँ पे हमने किया था ना PH CH डबल बॉन्ड C, G की वैल्यू क्या है CHO है तो सिनेमल डिहाइड। अगर G की वैल्यू C OH है, G की वैल्यू COOH है तो उसको क्या बोलेंगे सिनेमिक एसिड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, एक बार इसको आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो डाउट क्लास में। ऑल राइट, आगे चले। ये सब कुछ आगे का एडवांस सिलेबस है। तो मैंने एडवांस सिलेबस कराने से पहले ही जो उसमें मेजर कंपोनेंट है फेमस कंपाउंड्स का वो मैं शुरू में ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि दीज फेमस कंपाउंड्स नीड टाइम टू लर्न। ठीक है, जब आप इसको 4-5 सेट बना के, जैसे मैंने आपको बताया होमवर्क टाइप से बना के, उसको जब आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे सुबह उठ के रात में सोने के समय, देन ओनली देन ओनली यू कैन मेमोराइज ऑल द कॉमन नेम दैट आई हैव डिलीवर्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए लेक्चर 1 हमारा फेमस नेम्स है। ऑल राइट, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज नेम रिएक्शन, इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज रीएजेंट्स, इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज कॉमन एंड फेमस नेम्स। दैट्स व्हाई वी हैव प्रायोरिटाइज दो टॉपिक्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ आवर कोर्स लेक्चर्स। ऑल राइट, तो आपको रिपीटेड रिवीजन, देन इफ यू डू द रिपीटेड रिवीजन देन थिंग्स विल बी इज्ड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑल राइट, नाउ अब देखो, अब हम कुछ 7 मेंबर्ड फेमस कंपाउंड्स लेंगे, 7 मेंबर्ड फेमस कंपाउंड लेंगे। तो यहाँ पे सारे 7 मेंबर्स हैं। तो देखो ये कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप नाइलॉन 6 पॉलीमर पढ़ोगे तो वहां मोनोमर क्या होता है कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक, देन ट्रोपाइलियम कैटायन ये कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ये एरोमेटिक होता है। क्या होता है? ये एरोमेटिक होता है। तो ये हम एरोमेटिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑल राइट, दिस बिकम्स, अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज की जगह मैंने क्या किया है, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह मैंने C डबल बॉन्ड O लगा दिया है। तो ट्रोप ट्रोप मतलब, ध्यान से समझो, ट्रोप की मीनिंग होती है 7 कार्बन रिंग है। ठीक है, विद 3 डबल बॉन्ड जो कि कंजुगेटेड है, 3 डबल बॉन्ड। ओन का मतलब क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अंतर। अब मैंने इस मॉलिक्यूल में देखिए, ट्रोप का मतलब क्या हो गया? ट्रोप का मतलब 7 कार्बन है विद 3 डबल बॉन्ड्स। ओ एल का मतलब क्या है? OH ग्रुप लगा हुआ है। ओन का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड O लगा है। तो ट्रोपोन और ट्रोपोलोन में क्या अंतर है? ट्रोपोन और ट्रोपोलोन में यही अंतर है OH बॉन्ड का, OH बॉन्ड का। ऑल राइट, सबको क्लियर है? ट्रोपोन एंड ट्रोपोलोन। ऑल राइट, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एजुलिन है। ये यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है। तो इसको याद कर कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एक 7 मेंबर रिंग बनानी है, उसको फ्यूज कर देना है 5 मेंबर के साथ। ठीक है, और जब इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म का मतलब जब इसमें हम चार्ज सेपरेशन करेंगे तो 7 मेंबर में आएगा पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर में आएगा निगेटिव चार्ज, जो कि इसको भी एरोमेटिक बना देगा और इसको भी एरोमेटिक बना देगा। तो ओवरऑल एजुलिन क्या है? 7+5 का कॉम्बिनेशन है। और ये 2 कार्बन से ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो है 2 कार्बन से आपस में जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं फुलविन्स की। ये सिलेबस में हमारे पढ़ा हुआ है। तो फुलविन्स में क्या होता है, ध्यान से समझो। फुलविन्स आर दोज क्लास ऑफ कंपाउंड्स
in which two ring A and B, two rings are joined by a double bond. तो अब देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, रिंग ए और रिंग बी को जोड़ने वाला एक डबल बॉन्ड है, रिंग बी और रिंग ए को जोड़ने वाला एक डबल बॉन्ड है, इस रिंग को जोड़ने वाला एक डबल बॉन्ड है, इस रिंग को जोड़ने वाला एक डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं फुलविन्स। ऑलराइट, चलो अब एनुलिन्स क्या करते हैं। फुलविन्स क्या हो गए, ये क्या हो गए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, दो साइकिल बनेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड। अब एनुलिन्स क्या होते हैं, ध्यान से समझो। एनुलिन्स का स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूं, ये बाईसाइक्लिक नहीं होगा, रिंग केवल एक ही होगा, रिंग केवल वन रिंग ही होगा, बट उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। तो जैसे बेंजीन है तो उसमें 3 बॉन्ड है, तो मैं उसको बोलूंगा 6 एनुलिन। क्या बोलूंगा, 6 एनुलिन। बेंजीन को मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ 6 एनुलिन, एक रिंग है। ठीक, इसी तरह एक देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या है, 8 एनुलिन है। ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, 10 एनुलिन हो गया। ठीक है, इसी तरह 12 एनुलिन होगा। लेकिन ओवरऑल देखो ये क्या है, एक रिंग ही है, ये रिंग की साइज बड़ी हो सकती है। ठीक है, रिंग की साइज बड़ी हो सकती है, 10 कार्बन की रिंग है। इसी तरह ये वाली क्या होगी, 12 कार्बन की रिंग होगी, जिसमें 6 पाई बॉन्ड्स होंगे और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 12 वाले में मैं लिख दे रहा हूं कितने कार्बन होंगे, 12 कार्बन की रिंग होगी, ठीक, 6 पाई बॉन्ड होंगे और उसके अंदर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यानी 14 कार्बन की एक सिंगल रिंग होगी, 14 कार्बन रिंग, 13 कार्बन रिंग। ऑलराइट, तो कितने उसमें पाई बॉन्ड होंगे, 7 पाई बॉन्ड्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, अब देखो जो एनुलिन्स होते हैं ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ऑलराइट, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब हम थोड़ा सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड और ये सारी चीजें। तो जल्दी से इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। या छोड़ो, चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। आप अपने डाउट्स इकट्ठे कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का देखो, इसमें ज्यादा बचा नहीं है अब। ठीक है, कुछ एक पार्ट ये हो गया, लगभग ये खत्म ही है। ओके, चलो टेक केयर।